اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے آثار سمجھیں اور ان کی اتباع کرتے ہوئے اس ذات کریم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یعنی کیا خدا موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کا عمل دخل دنیاوی معاملات میں کیا ہے؟ وہ کس طرح سے ضبط و ربط رکھتا ہے؟ اس انسانوں سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اور کیسے ان کے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ کیا خدا ہے بھی اپنے کام ہیں؟ نہیں، اس کے کون سے کام ہیں؟ وہ یہ کائنات بنائی، ہمارے لیے بنائی، زمین و آسمان ہمارے لیے، یہ دنیا میں جہان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے، جیسے قرآن میں اللہ خود کہتا ہے میں نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کو کیسے پہچانے؟ آپ جانتے ہیں کسی بھی شخصیت، کسی بھی معاملے کا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت جاننے کے لیے اس ڈیٹا کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس ڈیٹا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ پروفیسر احمد رفیع اختر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا ہمارے پاس قرآن شریف موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ڈیٹا ہمارے پاس قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے۔ اگر قرآن شریف میں کوئی غلطی ہوگی تو خدا غائب، اگر قرآن شریف میں کوئی غلطی نہیں ہے وہ برحق کتاب ہے کہ خدا موجود۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا ہے اور یہ معیار ہے۔ صرف ایک بات ہے، بڑی کوشش کر لیں، ایک غلطی تلاش کر لیں۔ اگر اس میں ایک غلطی آپ نے تلاش کر لی تو جان چھوٹی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کدھر اور ہم کدھر؟ آج تک جب سے قرآن شریف نازل ہوا ہے کوئی بھی شخص کتنا بھی کوشش کر لے وہ قرآن شریف میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو موجود ہے، جو سارے جہان کے کاروبار کو چلا رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے، اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہتی ہے ویسا ہی وہ ذات کر رہی ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے، کیا ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی نشانیاں قرآن شریف کے علاوہ بھی ہیں۔ دیکھیے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکومت جون سے بھی شکل ہو، بادشاہی ہو، جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی حکومت کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نے حکومت نہیں دیکھی۔ کیوں؟ دیکھو، آج کے جمہوری زمانے میں جمہوری حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ سینٹ ہوتا ہے، قومی اسمبلی ہوتی ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اور آگے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے عمال ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ کام کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ جب ایک آفیسر کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ ڈی سی ہے، وہ کمشنر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، کیا ہے؟ یعنی جو بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ اس کا اذن ہوتا ہے، اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ اب وہ جتنے بھی کام کرے گا وہ سرکار کی اما پر کرے گا، حکومت کی اما پر کرے گا، لیکن حکومت نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو دنیاوی ہے نا، دنیا کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات
हर इंसान को एक मुकाम अता फरमाया है। जब उसे किसी खानदान में, किसी कुनबे में, किसी घर में पैदा करता है तो वो उसका मुकाम तय हो जाता है कि ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, और जो वो काम करेगा वो खुदा के इज़्न ही से करेगा। उसे हर काम के करने के लिए अलग अलग हर दफ़ा हर काम के लिए खुदा से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होगी, और उसका किया हुआ काम खुदा का काम ही कहलवाएगा। जैसे कि एक अफीसर का किया हुआ काम हुकूमत का काम कहलाता है, इसी तरह से जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिंदा कर देते थे, कोढ़ी को शिफा याब कर देते थे, नाबीनों को रोशनी अता फरमा देते थे। लेकिन बिइज़्निल्लाह वही सर्टिफिकेट, वही मुकाम है जो मुकाम अल्लाह ताला ने अता किया था। हर दफ़ा हर काम के लिए अलग अलग से इजाज़त नहीं ली जाती। इसी तरह से जिस तरह से जब हुकूमत एक अफीसर को तैनात करती है तो जब तक अपने उस मुकाम के लिहाज से वो आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से वो काम सर अंजाम देता रहता है तो वो काम हुकूमत के काम भी गिने जाते हैं। लेकिन अगर वो अपनी हदूद व कयूल से आगे बढ़ता है तो उससे जवाब तलबी की जाती है, उससे पूछा जाता है कि ये क्या तुमने किया, उसका जवाब दे ठहराया जाता है। बिल्कुल बैन ही यही मामला अल्लाह ताला इंसानों के साथ करता है। इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है और उनको अहकाम अता फरमाता है। जो अंबिया ग्राम उन अहकामात को अपनी उम्मत तक पहुंचाते हैं। उनको बताया जाता है कि कौन से काम आपने करने हैं, कौन से कामों से आपने रुकना है। अब देखें, जब तक अंबिया की तालीम के मुताबिक काम होता रहेगा तो वो नेकी के काम शुमार होंगे, और जब उनके खिलाफ जाएगा तो उनको गुनाह सफर किया जाएगा, क्योंकि वो जो उनको इजाज़त दी गई थी, जैसे उनके मकाम के मुताबिक थी, उससे उन्होंने इजाफा किया, ज़्यादती की, वो गुनाह में शुमार हो जाएंगे। शुरू में मैंने जो बात कही थी कि हमने अल्लाह ताला को तलाश करना है, वो आसार देखने हैं। क्या वो ऐसे आसार पाए जाते हैं जो अल्लाह ताला की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके मुकाम के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक उसके ज़िम्मे काम लगाए होते हैं, और उनको जैसा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मैंने वो लेकर हर इंसान के गले में डाल दिए हैं, जो कि वक्त आने पर ज़ाहिर हो जाएंगे। इस कायनात का नज़म के साथ चलना, तरकीब के साथ चलना, इस बात को जाहिर करता है कि कोई चलाने वाला इसके पीछे मौजूद है। ये नज़म जो है वो किसी हुक्मरान की निशानदेही करता है। अगर किसी चीज़ में नज़म नहीं पाया जाता तो कह सकते हैं कि इसका नाज़िम कोई नहीं है, इसका इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तरतीब पाई जाएगी, जहाँ नज़म पाया जाएगा, तो उसके ऊपर उसको चलाने वाला मौजूद होगा। देखिए, मालिक्यूल, एटम जो हमें नज़र तक नहीं आते, लेकिन उनमें भी साइंस ने साबित किया है कि उनमें भी एक तरतीब है। तरतीब के अलावा कुछ नहीं है, वो तरतीब नहीं तोड़ते। इससे ये साबित होता है कि इसको कोई चलाने वाला मौजूद है। अगर हम इसी हुकूमत की मिसाल को लें, जो हुकूमत हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ उसके आसार, जो कि उमाल की शक्ल में, यानी कहीं वज़ीर आज़म है, कहीं सदर है, कहीं सेनेट है, कहीं असम्बली है, कहीं डीसी है, कहीं एसी है, ये सारे जो हैं उसके निशानात हैं, उसके अरकान हैं, वो ही नज़र आते हैं। उनसे पता चलता है कि हुकूमत का वजूद है, और ये सारे अमाल हुकूमत के नाम ही पर अमल करते हैं। इसी तरह जब इंसान
अपने हकूक, अपने जिम्मेदारियां उस लेटर के तहत अदा करता है जो कि अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत में, उसकी मकाम की सूरत में उसके लिए दिया है, उसके लिए मुकर्रर किया है, तो वो अल्लाह ही के काम शुमार होते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत, खुदा के खुदा होने का सबूत जो है, वो कुरान शरीफ की सूरत में मौजूद है, जो कि अल्लाह ताला का डाटा है। जब तक कुरान में कोई गलती साबित नहीं हो जाती, तो ये सबूत है कि इस कलाम का कलाम मुकल्लम कोई ना कोई मौजूद है, और इस निज़ाम को चलाने वाला कोई ना कोई मौजूद है, जो कि इसी बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला मौजूद है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये कायनात अचानक एक धमाके से फटी और बन गई, इत्तेफाक से फटी और कायनात बन गई, ये खुद से चल रही है, ज़माना अपने आप को खुद से चला रहा है, ये मादा खुद ही चलता जा रहा है। लेकिन इसका डाटा जो है वो ये बताता है कि मादा में कोई इल्म नहीं होता। इल्म तो उस ज़ात में होते है जिसने मादा को पैदा किया है। जब मादा का इल्म नहीं है, मादा को किसी बात की समझ नहीं है, वो सिर्फ कुछ असूलों के तहत चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको चलाने वाला कोई अलग से मौजूद है। यानी हम जिस तरफ से भी देखेंगे, जिस तरफ से गौर करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि इस कारखाना कुदरत को चलाने वाला कोई मौजूद है, जिसे हम खुदा कहते हैं, इलाह कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और उसके बनाए हुए कानूनों के मुताबिक ही हमने अमल करना होता है। आखिर में ये देखिए, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि तुम मोहम्मद यूसुफ को हाथ लगाकर हमें दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं अपना हाथ जिस्म के किसी हिस्से में भी लगाऊंगा तो वो उसका नाम होगा। देखिए, ये बाजू है, ये सर है, ये पेट है, ये अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो ये तो पेट है, तुम मोहम्मद यूसुफ तो नहीं हो। इसी तरह से जो कायनात सारी जहान में अल्लाह ताला का हुक्म चलता है, लेकिन उसने हर किसी को एक मकाम दिया हुआ है, और उनसे ये साबित होता है कि कोई शख्स, कोई ऐसी हस्ती जो है इस निज़ाम को चलाने वाली मौजूद है। यानी आखिर में साबित ये हुआ कि इस निज़ाम को चलाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। दूसरी बात, मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि मैं आइंदा चंद दिनों में तिब के बारे में, देसी तिब के बारे में कुछ नुस्खाजात आपके सामने रखूँगा। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वो वीडियो लोड करूँ तो आप तक पहुँच सकें। वस्सलाम।